As you are already aware that the Institute of Chartered Accountants of India have published their revisionary test papers for the students who are appearing in November 2018 examination. Now, in this class, we will be discussing the practical problems which are given in revisionary test paper, which will be helpful for presenting our main answers at the time of examination. Now we'll be starting with the revisionary test paper for November 2018 examination. The first and the most important thing is what has been given is here all the questions are compulsory and the same must be answered on the basis of the law which is amended up to say 30th अप्रैल 2018 30/4/2018 तक की जो लॉ अमेंडेड है उसके हिसाब से अपने को ये आंसर करना है क्वेश्चंस. Besides this, they have stated is the rates for goods and services tax have been mentioned in the various questions. They are hypothetical. So they have assumed those rates and the actual rates may be different. And further, GST compensation cess should be ignored in all the questions wherever applicable. You have to ignore what GST compensation cess. These are the important instructions which have been given. Now we start with question number 1. Fundamentally, the thing is we have to understand the question, then only we can attempt the answer. We must be conceptually very much clear about what the question is asking from us and what we have to reply and what we have to answer. Now we will be starting with question number 1. All-in-one store is a chain of departmental store having presence in all metro cities across India. Both exempted as well as taxable goods are sold in such stores. तो ये क्या कह रहे हैं कि ऑल इन वन एक स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, और उसकी सब मेट्रो सिटीज में प्रेजेंस है इन इंडिया. And it is engaged in dealing with exempted as well as taxable goods. They are selling taxable as well as exempted goods. Stores operate in rented properties. यानी ये rented properties में operate कर रहा है. They must be paying rent on the same, which will be chargeable to GST, and they will be entitled to take the credit of the same. All-in-one stores pay GST under regular scheme. Now it's very much clear that they have not opted for composition scheme. They are under regular scheme. They are paying full tax and they are entitled for the credit, if any. In Mumbai, the store operates in a rented complex, a part of which is used by the owner of store for his personal residential purposes. तो ओनर क्या है, पोर्शन को पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज में ले रहा है. ही इज यूजिंग दैट पार्ट और अ पार्ट ऑल्सो फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पसेस. सो इफ यू आर यूजिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, whatever GST is paid for a commercial complex used for residential purposes. If a commercial complex is taken on rent, it is liable to GST. अगर हम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेते रेजिडेंस के लिए तब GST उस पर नहीं लगता. हमने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स लिया है जिसका पोर्शन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, अपने
पर्सनल रेजिडेंस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल पर्पसेस पे जितना भी जीएसटी है उसका आपको क्या है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा. You won't be entitled to take any input tax credit of the same. Further, what this state is, all in one store, Mumbai furnishes the following details for the month of October. ये details क्या हैं अब इनकी month of October 2000 whatever 17-18 वो उसकी हैं. तो fundamentally what they are stating here is कि they are operating a chain of stores throughout India which is dealing in exempted as well as taxable goods. And the stores are run in a rented premises. In Mumbai, a part of the premises is used by the owner for his residential purposes. Details क्या कहते हैं? The aggregate value of various items sold in store. Taxable items is rupees 42 lakhs. Items exempted wide notification is rupees 12 lakhs. Exempt items की जो सेल है वो 12 लाख रुपए की है. Items which are not leviable to GST, that is rupees 3 lakhs. तो ये इनकी जो सेल है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो दे रखी है मुंबई स्टोर की. मुंबई स्टोर ट्रांसफर्स टू अनदर ऑल इन वन स्टोर लोकेटेड इन गोवा. मुंबई स्टोर ने क्या किया, जो गोवा में स्टोर लोकेटेड है उसको आइटम्स कुछ ट्रांसफर किए, टैक्सेबल आइटम्स, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम एज फ्री सैंपल्स. नाउ मुंबई स्टोर हैज ट्रांसफर्ड आइटम्स, goods to its Goa store, which will be further distributed as free samples. The value declared in the invoices for such item is rupees 5 lakhs. Such items are sold in Mumbai store at rupees 8 lakhs. तो अब अपने पास ये बात आ गई, एक तो मुंबई स्टोर है और एक गोवा स्टोर है. ये क्या माने जाएंगे? सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, और एज पर सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट रेड विद शेड्यूल 1, ये हमको सब मेंशन करना पड़ेगा बाद में. इनके बीच में जो सप्लाई है वो क्या मानी जा रही है? द सेम विल बी व्हाट? डीम्ड सप्लाई. नाउ द गोवा स्टोर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम एज फ्री सैंपल्स, in the sense that if Goa store is distributing any goods which has been procured by it as free samples, then it won't be entitled to take full input tax credit. That is, the credit so taken may be reversed, have to be reversed. Hey, therefore, when you value the same, you cannot take the invoice value. Invoice value cannot be taken as per the valuation rules. You have to take what? The open market value. So whatever goods are transferred to the Goa store, for that purpose, we have to take what? The open market value for valuation purposes. Is it clear? Because the Goa store is not entitled to take what? Full input tax credit of the goods which have been transferred from Mumbai store to Goa store. Further, they state what? Aggregate value of various items procured for being sold in the store. यानी ये items इन्होंने क्या किए? Procure किए for being sold in the store. Taxable items rupees 55 lakhs. Items exempted by way of notification 15 लाख रुपए के exempted goods खरीदे. गुड्स जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा है वो 5 लाख के थे. फर्दर इंफॉर्मेशन इज अबाउट फ्रेट पेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम्स. यानी फ्रेट हैज बीन पेड टू जीटीए,
freight amounting rupees 1 lakh has been paid to GTA. अब आपको GTA के केस में क्लियर है ही, अगर 5% लगता है तो क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, यानी उस फ्रेट पे जो जीएसटी लगेगा वो ऑल इन वन स्टोर पे करेगा। अगर GTA 12% चार्ज कर रहा है जीएसटी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस RCM will not be applicable in the sense that all in one store will not be liable to pay GST on the freight. The same will be deposited by the goods transport agency. Freight paid, then subsequently fifth point is what? तो आगे जाके information से पता चलेगा कि what they are stating. Freight paid for to GTA for inward transportation of exempted items, 80,000 रुपए ये है। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल आइटम्स, ये 20,000 रुपए। फिर देखिए आगे, नाउ मंथली रेंट पेएबल फॉर द कॉम्प्लेक्स इज 5,50,000। 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस इज अवेलेबल फॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पसेस। कितना हिस्सा ले लिया काम में? पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पसेस का के लिए 5,50,000 का इन्होंने रेंट पे किया है। तो जो भी जीएसटी है उस पर वर्कआउट हो क्या आएगा, उसका 1/3 क्या है, उसका आपको क्या है, यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू टेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेम बिकॉज दैट इज बीन यूज्ड फॉर व्हाट, पर्सनल यूज, दैट इज नॉन बिजनेस पर्पसेस। So this must be remembered when we'll be doing the main question. Activity of packing the items and putting the labels of the store along with sale price has been outsourced. So what they have done is, जो भी माल है उन पे जो भी ऑल इन वन स्टोर्स के लेबल्स लगने हैं और उनको पैक करना है, इसको किसी पर्सन को आउटसोर्स किया गया है और उसने कितना अमाउंट पेड फॉर पैकिंग, 2.5 लाख रुपए उसने क्या है इसके रिलेशन में चार्ज किया, पैकिंग एक्टिविटी के रिलेशन में चार्ज किया है 2.5 लाख रुपए। देन सैलरी पेड टू रेगुलर स्टाफ एट स्टोर इज रुपीज 2 lakhs। 2 lakh इज द सैलरी विच हैज बीन पेड टू रेगुलर स्टाफ। तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि सैलरी एम्प्लॉयज की कहां आती है, नेगेटिव लिस्ट में आती है, यानी जो शेड्यूल 3 है उसमें इसको इट इज नॉट रिगार्डेड एज व्हाट, अ सर्विस विच इज लेविएबल टू जीएसटी। शेड्यूल 3 के जो क्लॉज 1 है उसमें स्पेसिफिकली इट हैज बीन मेंशन कि वॉट एवर एम्प्लॉय रेंडर सर्विसेज टू द एम्प्लॉय इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, द सेम विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी because it will not be regarded as supply of service. GST which has been paid on inputs for personal purposes, 5,000 रुपए GST अपन ने inputs पे दिया है which has been used for personal purposes. GST paid on rent a cab services availed for business purposes. तो rent a cab services हमने ली हैं business use के लिए, but the thing is until and unless we further supply rent-a-cab services as a part of our normal supply or mixed or composite supply, then it won't be eligible for credit. It is blocked under section 17(5). फिर items which have been paid, so GST paid on items as given as free samples, it is say rupees 4,000। 4,000 रुपए हमने उन आइटम्स पे जीएसटी पे किया है जो कि अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कैसे, एज फ्री सैंपल्स। हियर ऑल्सो 17(5) के अंदर ही आपको क्लॉज एच में दे रखा है कि यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू टेक व्हाट, द क्रेडिट ऑफ द सेम। अब ये फर्दर क्या बोलते हैं देखिए, नाउ दे आर कमिंग टू द क्वेश्चन। This is all about the information.
ये इन्होंने इंफॉर्मेशन हमको दी है। अब ये फर्दर क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए, given the above available facts, this is the information about the question, they have given the facts, you are required to compute the following. आपको अब क्या क्या कंप्यूट करना है? नंबर ए, input tax credit, that is ITC, to be credited to your electronic credit ledger. तो कितना अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये कंप्यूटेशन करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड टू व्हाट, द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एज यू आर नाउ यू हैव रेड द फैक्ट्स, आपको ये पता चल गया है कि ऑल इन वन स्टोर इज डीलिंग विद टैक्सेबल as well as exempted supplies, and non-taxable supplies are also what, coming under the ambit of the exempted supplies. Therefore, as per the provisions of section 17 read with rule 42, you will not be entitled to take entire credit. You have to apportion the credit. आपको जो भी टैक्स अपन ने जीएसटी पे किया है इनपुट्स पे और इनपुट सर्विसेज पे, उसका अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, in the sense that whatever tax GST has been paid on the inputs which are used for exempted supplies, you won't be entitled to take the credit. If any input and input service is used for effecting both the taxable as well as exempted supplies, that is a common credit, proportionate amount of credit is to be what, reversed. तो आपको सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि भाई कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। फिर सब सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज फ्रॉम द अबव फैक्ट्स कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट विल बी देयर, कितना कॉमन क्रेडिट रहेगा, हाउ मच आईटीसी विल बी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट में से कितना आईटीसी एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए होगा, उसके अलावा हाउ मच एलिजिबल आईटीसी इज आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट, जो रिमेनिंग है आउट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज के बाद जो बचेगा कॉमन में से, वो आपका एलिजिबल आईटीसी होगा। और फिर ये इन्होंने आपसे ये मांग रहे हैं लास्ट में, यू हैव टू वर्क आउट द नेट जीएसटी लायबिलिटी। सो वी हैव टू फाइंड आउट दीज 5 points from the information which has been given to us above. Further note is stating what, wherever applicable, GST under RCM is payable at rate of 5%. जहां भी एप्लीकेबल है, RCM में GST जहां भी एप्लीकेबल है, रेट 5% है। तभी क्लियर हो गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर हम अवेल कर रहे हैं सर्विसेज, तो फिर क्या होएगा, ऑटोमेटिकली RCM अप्लाई होगा। ये रेट क्या दे दी इन्होंने, RCM वाली 5% दे दी। एंड रेट ऑफ जीएसटी इन ऑल अदर केसेस कितनी है, 18% है। ऑल अदर केसेस में रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। फिर ऑल सेल्स एंड परचेजेस मेड बाय स्टोर आर विद इन महाराष्ट्र। एक अपन ने देखा कि भाई उन्होंने अपने गोवा के स्टोर को ट्रांसफर किया है, डीम्ड सप्लाई के एम्बिट में वो आ रहा है। अदरवाइज ऑल द सेल्स एंड परचेजेस मेड बाय द स्टोर आर विद इन दी महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट, तो इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, एन इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई है, एक को छोड़ के। फिर ऑल द परचेजेस आर मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। जो भी माल उन्होंने लिया है वो क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है, इन द सेंस दैट वो भी जीएसटी लग के आया होगा। एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इनकर्ड आर ऑल्सो विद इन द स्टेट। जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं वो विद इन द स्टेट ही हुए हैं। बिसाइड्स दिस दे आर फर्दर स्टेटिंग व्हाट, कि जो भी एप्लीकेबल, जहां भी एप्लीकेबल है, द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। These amounts are what? Exclusive of taxes. And then
सारी जो नेसेसरी कंडीशंस है फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद. नाउ फ्रॉम दिस फर्दर इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स व्हिच हैव बीन गिवन अबव, we are required to compute first of all the input tax credit, which is to be credited to our electronic credit ledger. Second, how much is the common credit. Third is how much amount of out of the common credit, कितना आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है और कितना आपका चौथा पॉइंट में एलिजिबल क्रेडिट है, और कितनी फिर फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये पूछ रहे हैं जीएसटी लायबिलिटी आएगी. तो दिस इज अ क्वेश्चन which will be proceeding one by one. हम एक एक चीज को करेंगे. And as you are aware that working notes form, they are very very important. ये आपका पार्ट करता है आंसर. Working notes are very important and marks are given in accordance with the working note. तो ये अब अपने को क्या है, we will be now presenting the question. First of all, what they are stating here is कि अपने को जब हमने देखा कि कोई इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी काम में आ रहे हैं और किसके लिए काम में आ रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी काम में आ रहे हैं. And exempted supplies includes what? Non-taxable supplies. जब ये दोनों के लिए काम में आ रहा है तो आपको proportionate credit is to be paid. कौन सा proportionate credit? Which is utilized for what? The exempted supplies as well as what? Including what? The non-taxable supplies. तो ये हमको पता चल रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 and 3 read with rule 42 of the CGST rules. ये आपको लिखना पड़ेगा कि if any inputs and input services they are partly used for effecting taxable supplies, दोनों काम हो रहा है हमारे यहां, as well as exempted supplies. So input tax credit shall be attributed and eligibility will be for taxable supplies, including zero rated supplies. This is the first and the foremost aspect which we have to mention in our working notes. अब ये पहला जो पार्ट था, उन्होंने क्या पूछा आपसे, पहला पार्ट इन्होंने ये पूछा कि भाई हमको निकालना है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्रेडिटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब इस इंफॉर्मेशन से अपने को क्या निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो रहा है. तो अब देखिए, अगर टोटल अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स, हमने ये बोला कि वो तो टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स जो कि किस पे दिया है अपन ने, इनपुट्स पे,
इनपुट सर्विसेज पे। ये से हम डिनोट करते हैं टी से। तो इसमें से अपने को लेस करना पड़ता था क्या? T1। T1 क्या था? जो आपके नॉन बिजनेस के लिए आ रहा था वो लेस होता था। T2 जो आपके एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए आ रहा था काम में, क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स आपको मिलता नहीं था। जो इनपुट टैक्स आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के रिलेशन में था। और तीसरा जो क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है, जो ब्लॉक्ड है सेक्शन 17(5) में। ये तीनों रिड्यूस करके हमारे पास क्या आ जाता था? ये अपने पास आता था तीनों रिड्यूस करके कि भाई दिस मच अमाउंट ऑफ आईटीसी will be credited to electronic credit ledger। भाई सीधी सी बात है, ये अमाउंट अपना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता था? क्रेडिट होता था। यानी T-T1 -T2 -T3 दिस मच अमाउंट ऑफ आईटीसी, जो C1 है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता था। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो इन्होंने ये मांगी ए कि भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देते थे T4। T4 क्या होता था? जो स्पेसिफिकली जो किसके लिए काम में आ रहा है, क्रेडिट जो स्पेसिफिकली जो मिलना ही मिलना है, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए आ रहा है। ये बच जाता था C2। एक तरह से क्या हो गया, कॉमन क्रेडिट है। एक इन्होंने ये मांगा था कि भाई कितना कॉमन क्रेडिट है, ये कॉमन क्रेडिट कितना है वो देखना है अपने को। फिर आपको ये बोल रहा है कि भाई कितना अमाउंट जो है अपने कॉमन क्रेडिट जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए काम में आ रहा है, कॉमन जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए काम में आ रहा है, इतना आउटपुट टैक्स ये जो अपना है ये रिवर्सल होगा क्रेडिट का, यानी यू हैव टू पे द सेम। और वो आता था अपने D1 कैसे, C2 इंटू E/F, यानी जो कॉमन क्रेडिट है, E मतलब जो एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज का जो टर्नओवर है, जो आपका टर्नओवर है, ये आपका एक तरह से क्या हो जाता था, टोटल टर्नओवर हो जाता था। फिर बच जाता था, बाकी क्या रह जाता था अपना, वो रिमेनिंग जो क्रेडिट है वो एलिजिबल आता था जब आपके पास और नॉन बिजनेस सप्लाईज के रिलेशन में अलग से क्रेडिट नहीं बचता है। तो फंडामेंटली ये सब अपने को क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमको टी निकालना पड़ेगा कि भाई पहले तो अपने को ये देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ क्या है इनपुट टैक्स अपन ने क्या है पे किया। तो पहले अपनी कैलकुलेशन ही होगी। तो अब देखिए, फर्स्ट कैलकुलेशन विल बी व्हाट, ऑफ टी, दैट इज टोटल अमाउंट of input tax paid on inputs and input services। ये अपने को निकालना है। ये क्या हो गया अपना, टी हो गया। अब देखें अपन जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो क्या कहती है,
सोल्ड वाली तो बाद में आएगी जब अपन आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी निकालेंगे, और ये सेकंड वाला मुंबई स्टोर वाला भी, ये सब चीज बाद में आएगी। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स प्रोक्योर्ड फॉर बीइंग सोल्ड इन स्टोर। अब हमने टैक्सेबल आइटम्स जो परचेज किए हैं वो कितने हैं, 55 लाख रुपए के क्या हैं अपने टैक्सेबल आइटम्स। और इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई उस केस के अंदर रेट ऑफ जो जीएसटी है वो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर 18% है, बाकी जहां आरसीएम है वहां क्या है, वो ये है 5%। तो देखिए जो अपन ने सबसे पहले जो जीएसटी है पेड ऑन टैक्सेबल गुड्स परचेज किया अपन ने कितने में, 55 लाख में किया ना, 18% अपन ने ये दिया, तो कितना हो गया ये 55 लाख का 18% कितना हो गया, ये हो गया आपका 9,90,000। दूसरे हमने खरीदे एग्जेम्प्टेड गुड्स, और जो जीएसटी से लेविएबल नहीं है, इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी से लेविएबल नहीं है, उन पे कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक तो अपन ने एग्जेम्प्टेड गुड्स खरीदे हैं, नो जीएसटी इज टू बी पेड, और एक अपन ने खरीदे हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं गुड्स या आइटम्स जो भी है, इस पे भी आपको क्या है, नो जीएसटी इज टू बी पेड। ये दोनों पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। फिर चौथा आइटम, फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम्स, 1 लाख रुपए। तो फ्रेट पेड टू जीटीए 1 लाख रुपए बने टैक्सेबल आइटम्स के लिए फ्रेट पे किए 5% की रेट से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। इस जीएसटी को आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा पहले कैश में, फिर ही आप इसका क्या ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो। यू कैन नॉट यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ दिस टैक्स which is paid to be paid under RCM. The same is to be deposited in cash and subsequently will be entitled to take the credit of the same. तो ये 1 लाख का 5% ये हो गया। फिर आगे क्या बोलता है ये देखिए, आइटम्स जो अपन ने एग्जेम्प्टेड आइटम्स के लिए 80,000 रुपए और नॉन टैक्सेबल के लिए 20,000, इस पे भी आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। ये फ्रेट पेड टू जीटीए, ये एग्जेम्प्टेड आइटम्स का हो गया 80,000 का 5%, और यही फ्रेट पेड टू जीटीए जो कि किसका है, नॉन टैक्सेबल आइटम्स का है, कितना 20,000 है, 20,000 है ना, 20,000 है। ये दोनों किस में जाएंगे, आरसीएम में जाएंगे। 4,000 एक हो गया, 1,000 एक हो गया। एंड दिस इज टू बी ऑल्सो केप्ट इन माइंड दैट नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल, क्योंकि ये जो सप्लाईज होंगी आपकी आगे, ये तो एग्जेम्प्टेड ही है, ये एग्जेम्प्टेड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ section definition, exempt under 274, exempted supplies also includes what, the supplies on which no non-taxable supplies are also included in the same. तो ये non-taxable supplies भी
इसके अंदर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है एज पर सेक्शन 247। तो यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट। इसका आपको आरसी में टैक्स पे तो करना पड़ेगा, परंतु यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू टेक व्हाट, द क्रेडिट ऑफ द सेम। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है आगे, 80,000 20,000 हो गया। फिर मंथली रेंट पेएबल फॉर कॉम्प्लेक्स 5,50,000। ये रेंट पे जीएसटी 18% से आपको देना होगा, यानी जीएसटी पेड ऑन मंथली रेंट 5,50,000 का 18%। और इसने बोल रखा है कि जो भी आया अमाउंट उसका 1/3 क्या है, अपना पर्सनल यूज के लिए, 1/3 पर्सनल यूज के लिए। यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द सेम। तो 5,50,000 का 18% होता है 99,000, यानी 99,000 का 1/3 हो गया। आगे के लिए पॉइंट काम में आएगा, 33,000 रुपए आपको इसका क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है ये देखते हैं हम। पैकिंग एक्टिविटी, ये कॉमन में चला जाएगा। कितना जीएसटी पे किया अपन ने, क्या पैकिंग एक्टिविटी में, जीएसटी पेड ऑन पैकिंग एक्टिविटी 2.5 लाख रुपए, 18% है। कितना होता है, 45,000 ये हो गया। उसके बाद देखिए सैलरी पेड टू स्टाफ, इसका तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। सैलरी पेड टू स्टाफ ये नेगेटिव लिस्ट में है, इसका नोट लिखना पड़ेगा आपको। शेड्यूल 3 में सीजीएसटी एक्ट, इसका आपको कोई नो जीएसटी विल बी लेवीड, इसमें कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो क्रेडिट तो मिलना ही नहीं है। जब जीएसटी नहीं लग रहा तो क्रेडिट कहां से मिलेगा। फिर देखिए जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स फॉर पर्सनल यूज हो गया, जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स फॉर पर्सनल यूज हो गया। कितना जीएसटी पे किया है, 5,000। पर इसका भी ध्यान रखिएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा आगे। उसके अलावा जो जीएसटी अपन ने दिया है रेंट अ कैब सर्विसेज पे, जीएसटी ऑन रेंट अ कैब सर्विसेज, ये भी 17.5 के अंदर क्या आ रहा है, ब्लॉक डे से। पर आपने कितना टैक्स पे किया था इसमें, रेंट कैब पे 4,000 दिया था, क्रेडिट मिलेगा नहीं। इसका भी आपको ध्यान रखना है, आईटीसी नहीं मिलेगा, वहां नहीं लिखना है, अपने को अलग से नोट में लिखना पड़ेगा ये। और एक है अपने आइटम्स गिवन एज फ्री एज सैंपल्स, items which has been given as free samples, free samples
फ्री सैंपल्स के रिलेशन में भी 4000 है। तो ये सारा अपना टोटल जो इनपुट टैक्स है, इसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे टी। कितना आ गया ये टोटल इनपुट टैक्स? अगर हम देखते हैं तो देखो 9,90,000 प्लस 5,000, ठीक है, प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 99,000 प्लस 45,000 45 हो गया ना, प्लस 5,000 प्लस 4,000 और प्लस 4,000, यानी ये आ रहा है 11,57,000 रुपीज। ये 11,57,000 रुपीज आ रहा है। अब देखिए, अब अपने को T1 निकालना है। अब इजी हो गया। T1 क्या है? दैट इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, जो इनपुट टैक्स है ऊपर में से। इनपुट टैक्स जो नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए काम में आ रहा है वो कितना है? एक तो देखो अपन ने रेंट का देखा था, रेंट पे जीएसटी पेड ऑन रेंट फॉर पर्सनल पर्पस। ये हो गया हमारा रेंट। कितना था? 5,000 रेंट था। 5,50,000 उसका 18% का 1/3, वो कैलकुलेट भी किया था अपन ने। ये आ गया था 5,50,000 का 18% डिवाइडेड बाय 3, एक तो हो गया 33,000 रुपीज। और एक अपने आ रही थी इंफॉर्मेशन जो कि इनपुट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, ये सेकंड में था, इनपुट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स फॉर पर्सनल पर्पसेस 5,000। ये कितना हो गया? T1 38,000, तो T1 हो गया। फिर है T2 जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए काम में है, इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, इंक्लूडिंग क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। एक तो देखो अपन ने जीटीए में जो टैक्स पे किया है, आरसीएम में एग्जेम्प्टेड आइटम्स का, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसका आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा है। और वो क्या है देखिए, वो आ रहा है हमारे ऊपर ही ऊपर में। एक तो ये 4,000 रुपये है और एक ये अपने 1,000 रुपये, दोनों दोनों आ गए, 4,000 और 1,000। तो ये आ गया अपना एग्जेम्प्टेड वाला 4,000 और नॉन टैक्सेबल वाला जो है 1,000। तो ये T2 हो गया आपका कितना? 5,000। उसके अलावा अब हमारे को ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट देखनी है। ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट में अपने आ रहा है, कौन सा ब्लॉक्ड था?
एक तो रेंट अ कैब, उसके लिए नोट है, और एक फ्री सैंपल्स। ब्लॉक क्रेडिट 17.5 के अंदर। T3 हो गया अपना ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन 17.5। एक तो हो गया अपना ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17.5 रेंट अ कैब। कितना था रेंट अ कैब पे? 4,000, दोनों पे 4,000। रेंट अ कैब पे 4,000 हो गया, और एक जो अपने फ्री सैंपल्स आपने दिए उस पे भी 4,000 हो गया। तो टी में से ये पहला पार्ट आ रहा है अपना आंसर ए, कि भाई टी में से T1, T2, T3 लेस कर दो तो बचा हुआ अमाउंट क्या आएगा। अब हमारे को नंबर ए पे आ गई कि भाई अपने को कितना अमाउंट जो कि अपने को क्रेडिट करना है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कितना अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, दैट इज टी माइनस T1, T2, T3। टी कितना था अपना 11,57,000 था। T1 आ रहा था 38,000, 38,000। T2 आ रहा था अपना 5,000 एंड T3 आ रहा है अपना 8,000। तो this much amount of credit will be credited to our electronic credit ledger. ₹11,06,000। कितना हमारा अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, वो आ रहा है आपके क्या, ₹11,06,000। अब जो क्रेडिट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, उसको हटाया जाएगा और रिमेनिंग रहेगा अपना क्या, कॉमन क्रेडिट। तो जो क्रेडिट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज है, क्रेडिट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज, वो अपने हो गया क्या, T4। तो एक अपन ने देखा था ऊपर ही ऊपर में ये आ रहा था अपना, तो 9,90,000 तो एक हो गया, और दूसरा है अपने फ्रेट 5,000, ये फ्रेट है। बाकी इसका ट्रीटमेंट हो चुका, इसका ट्रीटमेंट हो चुका, इसमें से 33 लेस हो चुका अपना ऑलरेडी, और एक अपने आ रहा है ये 45,000, ये कॉमन में चला जाएगा, और पर्सनल यूज वाला मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा। तो एक तो हो गया अपने 9,90,000, दैट इज GST पेड ऑन टैक्सेबल आइटम्स 9,90,000, और एक GST पेड ऑन फ्रेट
अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम किस पे? टैक्सेबल आइटम्स पे। और कितना अमाउंट आ रहा था? वो आ रहा है 5,000, दैट इज 5,000 रुपीज। तो ये हो गया 995। हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इज देयर? जो कॉमन क्रेडिट है वो अब आपका कितना हो गया? कॉमन क्रेडिट हो गया आपका, हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इज देयर? दैट इज 11,06,000 minus 9,95,000 equals to say 1,11,000। 1,11,000 रुपए आपका क्या है? ये कॉमन क्रेडिट है। अब देखिए कितना कॉमन क्रेडिट है। कॉमन क्रेडिट है 1,11,000 रुपए कॉमन क्रेडिट है। अब अपने को कॉमन क्रेडिट में से C1 है, C2 है, मतलब C2 है, इसमें से कितना अपने को एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए निकालना है। तो कॉमन क्रेडिट कितना एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए काम में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? C2 इंटू E/F, ये D1 था, E हो गया अपने एग्जेम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर, F हो गया अपने टोटल टर्नओवर, F हो गया टोटल टर्नओवर। तो अब देखिए हमारे को जो एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो टर्नओवर आ रहा है वो 12 लाख और 3 लाख आ रहा है। एग्जेम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर कितना आ रहा है? 12 लाख और 3 लाख आ रहा है। ये तो एग्जेम्प्ट है और ये क्या है? जो नॉन टैक्सेबल है। 15 लाख हो गए। और अपने जो क्या नाम से हमारे जो टैक्सेबल सप्लाईज का टर्नओवर है 42 लाख। टैक्सेबल सप्लाईज का जो टर्नओवर आ रहा है वो आ रहा है, एक तो 42 लैक्स है और एक अपन ने अपनी जो मुंबई से गोवा स्टोर को ट्रांसफर किया था उसका अमाउंट आ रहा था अपने OMV, वो आ रही थी अपनी कितनी? 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख रुपीज ही हो गई, 50 लाख ये हो गया टैक्सेबल का टर्नओवर। तो अब ना कितना कॉमन क्रेडिट जो है एग्जेम्प्ट के लिए काम में आ रहा है? 1,11,000 इंटू 15 लैक्स अपॉन 65 लैक्स। ये कितना हो गया? 1,11,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 65, 25,615.38। दिस मच अमाउंट ऑफ द टैक्स, ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स है ये हमारी क्या है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाएगा।
और एक तरह से कितना एलिजिबल हो गया, 1,11,000। उसने ये भी पूछा था कॉमन में से कितना एलिजिबल है, 1,11,000 माइनस 25,615, जो कि आपका क्या हो गया, कॉमन में से एलिजिबल क्रेडिट हो गया 1,11,000, 1,11,000 माइनस 25,615 इक्वल्स टू 85385। तो ये अपने को देखना है। तो एक तो हमारा ये हो गया पोर्शन कि जो आपका सी हो गया, जो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है। डी आंसर में जितना अमाउंट आपका कॉमन में से एलिजिबल है ये आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है, अपने को क्या निकालनी है, जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ से जीएसटी लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। अब हमको डिटर्मिनेशन करनी है अपनी लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी आपको निकालनी है। अब देखिए, एक तो अपनी जो सप्लाईज ऑन विच जीएसटी विल बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज में अपने को जो जीएसटी अपने को देना होगा, एक तो हो जाएगा टैक्सेबल गुड्स का, टैक्सेबल गुड्स अपन ने कितने बेचे हैं, 42 लाख के गुड्स बेचे अपन ने टैक्सेबल। %18 विद इन द स्टोर ही बेचे हैं ये, विद इन मतलब महाराष्ट्र से, तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा बिकॉज इट इंट्रास्टेट सप्लाई। दैट वर्क्स आउट टू बी 7,56,000 रुपीज। और एक है डीम्ड सप्लाई, दैट इज ट्रांसफर टू ओन एस्टेब्लिशमेंट इन गोवा, वो एमवी थी 8 लाख रुपए, और उसका आपको देना होगा 18%। ये आ जाएगा 1,44,000 रुपीज। और जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हुआ था क्या, जो अमाउंट आपका इनएलिजिबल क्रेडिट का था, इनएलिजिबल क्रेडिट, दैट वाज 25,615। इसको अगर हम जोड़ते हैं 7,56,000 प्लस 1,44,000 प्लस 25,615, कितना अमाउंट आ गया ये, 925,615। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था अपने पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये हमारा 11,06,000 था, दैट वाज 11,06,000। सो अंडर फॉरवर्ड चार्ज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग, आपका ये अमाउंट क्या हो जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट इज 180
ITC to be carried forward. अब आपको क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना है, for which you cannot utilize your input tax rate. Tax to be paid under reverse charge mechanism, for which ITC cannot be utilized. इसमें एक तो GTA वाला है, तीनों GTA क्या आएंगे, ऑन freight paid to GTA, on taxable items वो अमाउंट आ रहा था हमारा 5,000 और 4 और 1,000. Freight paid to GTA on taxable items is 5,000. Freight paid to GTA on exempted items or freight paid to GTA on non-taxable supplies 1,000 रुपए. तो RCM के तहत आपको क्या है, 10,000 tax is to be deposited through electronic cash ledger. Fundamentally ये सब चीजें along with your working notes is to be mentioned, and you have to keep the time duration also in mind because the questions are lengthy and you have to write the working notes properly, और उसका आपको उसी हिसाब से क्या है काम करना होगा समय को ध्यान में रखते हुए. So this was a question number 1 which was dealing with the concept of say common credit. हमारे उन्होंने ये questions अपने पूछे थे इन्होंने कि भाई एक तो आप क्या निकालिए, कॉम ITC जो क्रेडिट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो अपना अमाउंट आ रहा था जो ITC to be credited in electronic credit ledger, that amount was rupees 11,06,000. एक तो 11,06,000 ये आ गया. दूसरा है कितना आपको क्या है कॉमन क्रेडिट है, जो कॉमन क्रेडिट का अमाउंट आ रहा था हमारा 1,00,000 और 11,000 हमारा कॉमन क्रेडिट आ रहा था. ITC attributable to exempt supplies, exempt सप्लाई वाला अपना अमाउंट आ रहा था 25,615. एलिजिबल ITC 1,11 में से 25,615 लेस करके एलिजिबल ITC आ रहा था, दैट वाज 85385. और नेट GST लायबिलिटी आपकी सिर्फ रिवर्स चार्ज वाली आ रही है 10,000 रुपए. तो दिस वे क्वेश्चन नंबर 1 वाज डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, द कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in case of any supplier who is dealing with exempted supplies as well as taxable supplies. अब हम लोग क्या है जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. वी विल बी नाउ डिस्कसिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 2. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेशन में था.